We'll choose questions from chapter Introduction to Trigonometry. Okay. Now the question number 1 is simple question. Sin theta cos 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta equal to what? So we know that the complement of cos theta is sin theta. So we have to write sin theta into sin theta, it is sin square theta. And cos theta, it is also cos theta. Sin 90 minus theta क्या होता है? Cos theta. तो sin square theta plus cos square theta. The value of sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is the identity number 1. The answer is 1. Okay. Now the question number 2. Under root 1 plus cos 60 degree by 2 equal to. Okay. The cos 60 degree equal to 1 by 2. It means 1 plus 1 by 2 divided by 2 of the under root. Okay. So it is equal to 1 plus 1 by 2 is root 3 by under root 3 by 2 and divided by 2. ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा? Under root 3 by 4. It means root 3 by 2. So which option is right? 1 by 4, 1 by 2, 1 not. Root 3 by 2. Simple questions है अभी. Question number 3. X equal to, if x equal to 2 sin square theta, y equal to 2 cos square theta plus 1, then the value of x and y. So x equal to 2 sin square theta and y equal to 2 cos square theta plus 1. Okay. Now solve. Take 2 common. So it is sin square theta plus cos square theta plus 1. It means it is 2 plus 1, 3. The value of this equal to the 3. B option is right. Okay. Now the next. If cos square 20 degree plus cos square 70 degree by 2, sin square 59 degree plus sin square 31 degree equal to 2 by k. Find the value of k. Okay. तो नाउ cos स्क्वायर 20 डिग्री एंड cos स्क्वायर 70 डिग्री हम जानते हैं 20 और 70 दोनों मिला के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री 90. तो हम लोग इसमें से cos स्क्वायर 20 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 70 डिग्री, क्योंकि cos 20 डिग्री इक्वल टू द sin 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 cos 20 sin 70 बाई 2 साइन स्क्वायर 59 एंड साइन स्क्वायर 31. देखिए 59 प्लस 31 90, यानी ये दोनों एंगल क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो हम साइन स्क्वायर 31 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 59. साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59. अब देखिए सेम ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 इक्वल टू द 1. ये फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या हो गया? 1. और नीचे भी साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 ऑल्सो 1. तो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 by 2 एंड दिस इक्वल टू द 2 by k. इट मीन्स k इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल टू 2 into 2 4. तो विच ऑप्शन इज राइट? 3 4 1 2. इट मीन्स बी ऑप्शन 4. ओके. Now next, fifth, sin square theta by 7 plus cos square theta by 7 equal to x by 21. Then x is equal to, simple question है ये भी, sin square theta plus cos square theta दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 7. दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, इक्वल टू x by 21. It is equal to 1 by 7 इक्वल टू x by 21. ये तो आइडेंटिटी से 1 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 21 by 7 इट इज 3. इट इज इक्वल टू 3. तो कौन सा ऑप्शन? 1 2 3 4. इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट, tan स्क्वायर 62 डिग्री इक्वल टू p by q. देन द वैल्यू ऑफ tan 28 डिग्री. अब देखिए tan 62 डिग्री है, वो उसको हम लोग cot 28 डिग्री लिख सकते हैं. कैसे? क्योंकि tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. तो 90 minus 62 is 28.
तो जो वैल्यू tan 62 डिग्री की है वही cot 28 की होगी, इक्वल टू P बाई Q। अब हमको निकालना क्या है, tan, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, tan 28 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको, ये तो रहेगा ही cot का रेसिप्रोकल, तो tan 28 डिग्री इक्वल टू Q बाई P, उलट देंगे रेसिप्रोकल Q बाई P। नाउ द right answer is Q by P, P plus Q, P minus Q, Q minus P. The right answer is Q by P. Okay. Next, in triangle ABC, cot B plus C by 2 equal to cot A by 2, tan B by 2, tan A by 2, cot C by 2. तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग हमेशा बनाते हैं, cot B plus C by 2 है तो ये tan A by 2 के बराबर होगा, क्योंकि cot और tan दोनों रेसिप्रोकल हैं। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ cos हो जाता, और यहाँ sec होगा तो यहाँ cosec। अगर यहाँ B प्लस C है तो यहाँ A आएगा, अगर यहाँ A प्लस C होता तो यहाँ B आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं tan A बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एकदम इजी क्वेश्चन, sin square theta plus cos square theta equal to 1 and sin square 1. It means 2 minus 3. 2 minus 3 equal to minus 1. This is the right option. Okay. Next, if cosec A plus cot A equal to P and cosec A minus cot A equal to Q, then P into Q. Okay. So now P into Q equal to cosec A plus cot A plus cot A. मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दोनों का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो वी नो दैट द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे और कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, तो आंसर इज 1। आप लोग डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जिन बच्चों को नहीं आता है उनको सिखाना जरूरी है, इससे उन लोग का रिवीजन होगा। नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन बी, देन जेड हैज वन ऑफ द फॉर, मतलब जेड की वैल्यू इनमें से क्या है। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ कॉस स्क्वायर बी, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये इसमें से अगर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू द 1, तो वी कैन राइट जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर ए। नाउ जेड इक्वल टू रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस ए, जेड इक्वल टू आर कॉस ए इज द बी ऑप्शन इज राइट। Okay. Next, question number 11. The question number 11 is x equal to m sin theta, y equal to n cos theta. Then the value of n square x square plus m square y square is. Okay. So just put the value n square m square sin square theta and m square n square cos square theta. m square n square कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, sin square theta plus cos square theta. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ m square n square. Okay. Next question, a equal to cos x cos y, b equal to sin x sin y, c equal to sin square x sin square y. Then what is the value of a square minus b square? Okay. Now a square minus b square means cos square x into cos square y minus sin square x and sin square y. दोनों मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ सी एंड एस, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को सी में आंसर चाहिए, सिर्फ किस में चाहिए, सी में, तो सी में सिर्फ साइन और
दोनों साइन है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस को इलिमिनेट करके हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और माइनस ये वाला पीछे वाला है, इसको लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर वाई। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई किसकी वैल्यू है, सी की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस सी। द राइट ऑप्शन इज हियर सी, 1 माइनस सी, 1 प्लस सी, सी माइनस 1, इट इज 1 माइनस सी। ओके, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंडर रूट, इट इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसा तो इन चारों में कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका RHS सॉल्व करके देखते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस और कॉट होता है कॉस बाई साइन। जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी यही आ रहा है, तो आंसर यही होगा। क्योंकि इसको करके देखेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, इसको भी चेंज करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए LHS RHS दोनों को इक्वल करते हुए राइट आंसर इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, in the next question, if root 3 tan theta equal to 3 sin theta, then the value of sin square theta minus cos square theta. Root 3 tan theta means root 3 sin theta upon cos theta equal to 3 sin theta. Okay, sin theta कैंसिल हो गया, cos theta equal to क्रॉस मल्टीप्लाई ये 3 हो गया, और इसके नीचे लाएंगे तो 1 बाई रूट 3। जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 3 स्क्वायर करेंगे, और हमको क्या निकालनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 1 बाई 3, इट इज इक्वल टू द 2 बाई 3। और हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 2 बाई 3 एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 3, इट इज इक्वल टू द 1 बाई 3। The right option is 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 3. Next, the value of sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta is, देखिए इसका sin raised to power 6 theta मतलब sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। 6 पावर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और साथ में है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, शॉर्ट में ही लिखते हैं ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, एंड हियर इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको छोड़ते हैं, इसको साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा, इसको ऐसे ही छोड़िए। इसको लिखेंगे पहले सिंप्लीफाई, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1, इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज द होल स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका होल स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू 1, 1 स्क्वायर इज 1। समझ में आ गया। इसको क्यूब करके लिखेंगे, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3 साइन स्क्वायर, ये इधर है साथ में, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा
प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 साइन स्क्वायर, फिर इसको होल स्क्वायर। द आंसर इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेक्स रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 10 रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। सेक रेज टू पावर 6 थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक रेज टू पावर स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 10 रेज टू पावर 2 का होल क्यूब। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। द फॉर्मूला इज a क्यूब a माइनस b। a यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है और b है 10 स्क्वायर थीटा। a माइनस b और आगे क्या होता है a स्क्वायर, यानी सेक रेज टू पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा सेक स्क्वायर थीटा ए बी। फॉर्मूला यही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 इक्वल टू 1, ये तो 1 होता है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सेक रेज टू पावर 4 थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 आएगा, तो यहां पर हम लोग 2 इसमें ऐड कर दें इसी को लाने के लिए। और ऑलरेडी एक सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा एंड 10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो आंसर है इसका 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 89 cos 90 डिग्री इज। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। द आंसर इज 0। जब 0 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 sin रेज टू पावर 4 30 डिग्री प्लस cos रेज टू पावर 4 60 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री टू मेक ए रिमाइंडर 0। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 cos 45 1/√2 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री sin स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 रेज टू पावर 2। नाउ सॉल्व 4 it is equal to 1/16 plus 1/16 minus 2 it is equal to the 1/2 minus 1 it is equal to the 1/4। ओके, तो it is equal to the 4 into बीच में यहाँ प्लस है माइनस 2 4 into 2/16। क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, ओके, नॉट द माइनस, प्लस। ओके, 2 into प्लस 2 into इट इज टेक एलसीएम 4 2 minus 1। ओके, 1/2 प्लस 1/2 1/4 इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि रिमाइंडर 0 करना है तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 देन x माइनस 3y इज। x इज 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड माइनस 3y, y इज 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2। ओके, तो नाउ सॉल्व 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस इधर से ले लेंगे माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी रहेगी, और ये है माइनस 1 और प्लस 6 माइनस 3 प्लस 2 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5। तो वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। The right answer is 8. Last question, 1/√3 tan 45 degree equal to cot theta.
tan 45 degree equal to 1. It means it is cot theta. Then the theta equal to, in cot theta, 1 by root 3 is the value of cot 60 degree. Okay, cot 60 degree equal to 1 by root 3. It means the theta equal to 60 degree. Okay.